Welcome everyone. My name is Faryal Chaudhary and I'm the host for today's session. Today is the day 5 of the Pakistan Law Student Association Criminal Law course, and at the day 5 we will cover some special criminal laws, which will also include and touch the areas of juvenile delinquency and also some of the cases like domestic based violence. So in order to start the session, I would like to introduce our esteemed speaker that has joined us today for this very session. His name is Sir Qasim Iqbal Jalali. He is currently is the High Court Advocate High Court. He is also running his own law firm named with the name of Alpha Legal. He has also experience of about 10 years, and he is also the visiting lecturer at International Islamic University. This reflects his diverse commitment to the legal acumen and the services that he has provided in the legal community so far. So, everyone, please welcome our speaker for today, Sir Qasim. You may start presenting or unmute your mic. Thank you. Hello and Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Pakistan Law Students Association and especially the president, Ms. Aqsa Sajjad, for inviting me in today's session. I hope I am audible for all of you. Yes, sir, you are audible. Thank you. So, for today's session, I was assigned mainly three topics. First was Anti-Terrorism Act. Second was the Juvenile Justice System, and third was the uh, about the special laws relating to women harassment and domestic violence. So let's start with the Anti-Terrorism Act. And since we have only 1 hour, so I'll just try to give you an overview of these laws and what is the hierarchy of courts and what are the main definition, main clauses uh, of all these laws which we are going to study today. So in as we if we start with the Anti-Terrorism Act, so in 1997, the Anti-Terrorism Act 1997 was enacted. Before that, there were three or four different legislations which dealt with the matter of terrorism. Uh, First was the Suppression of Terrorist Activities Special Courts Act 1975. It mainly it dealt with the matter of terrorism, the terrorism cases. After that, since in those courts also, the trial was very slow. It was not no provisions were there for the speedy trial. Preventing and So retrial. another so uh, is there any technical issue? ये सर आपकी थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है बीच में. Okay, let's just it. Okay. So, so the first special legislation regarding terrorism was the Suppression of Terrorist Activities Special Courts Act 1975, and and after that, another enactment was legislated, which was the Special Court for Speedy Trials Ordinance 1987. It was legislated through an ordinance. Uh, it provided the procedure for speedy trials of terrorism cases. After that, another enactment was passed regarding the special areas which were affected with the terrorism, the whole matter of terrorism. It was the Terrorist Affected Areas Special Courts Ordinance 1990.
So till 1990, there were three enactments which dealt with the matter of terrorism. After that, another enactment was passed, which basically converted the previous ordinance of speedy trials into an act. That is called the Special Courts for Speedy Trials Act 1991. So basically, these were the four previous enactments which dealt with the terrorism and the anti-terrorism codes. But in all these enactments, there was no clear definition of terrorism, number one. Secondly, there was no uniform process, there was no uniform system of dealing with the terrorism cases. So, in the era of 90s, there was a surge in the sectarian terrorism and the separatism also. So, a grave need occurred to tackle this menace of terrorism. So, in 1997, a comprehensive legislation was enacted, which is called the Anti-Terrorism Act 1997. और इस कानून के अंदर फिर एक comprehensive procedure दिया गया to deal with the matter of terrorism and the terrorist organizations. So this law repealed all previous legislation, and now this law is the main law for dealing with the menace of terrorism. So basically, the object of this enactment was to prevent terrorism, to ensure the deterrence of enforcement agencies and the state and the government, and to provide the speedy justice to the terrorism affected people. And lastly, to protect the state and its sovereignty and the society. So this Anti-Terrorism Act is basically a special law. The general law, you know, is the Pakistan Penal Code. Whoever commits any violence, any murder, he is dealt with the under the enactment of Pakistan Penal Code, and the procedure is given in the Pakistan in the CRPC, sorry, Criminal Procedure Code. So by enacting a special law like Anti-Terrorism Act, the legislature has given special procedure to deal with the menace of terrorism. It overrides the normal procedure of Criminal Procedure Code to some extent, and where this act, Anti-Terrorism Act, is silent, the effect of CRPC will come into play. So let's move on to the definition clause. Section 6 of the Anti-Terrorism Act basically defines what is terrorism. The whole uh, lecture, basically this session, which will deal with this act, will revolve around the definition of terrorism. Okay, so दहशत गर्दी और terrorism, what is terrorism, ये एक ऐसी एक generic term है जिसके ऊपर throughout this enactment or even in the enactment of 1975 ये क्लियर नहीं था, इवन जजेस को क्लियर नहीं था कि दहशत गर्दी क्या है. तो मुख्तलिफ जजमेंट्स में थ्रू आउट दिस पीरियड टिल दिस टाइम ये एक कंफ्यूजन रही कि टेररिज्म किस चीज को कहा जाए. सो पहले जब ये लॉ बनाया गया तो 1975 में तो उसमें कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन 1997 में जब एंटी टेररिज्म एक्ट आया तो in that legislation a progressive definition of terrorism was given. So it defined it
in section 6 of the ATA, it defined terrorist act as spreading terror among the people, alienating people, or adversely affecting the harmony between different groups of people. So basically, it defined terrorism act as spreading terror among people. So every act जिसकी वजह से लोगों के दरमियान दहशत फैल जाए उसको टेररिज्म कहा गया, या बड़े पैमाने पर एथनिक क्लेंजिंग हो उसको टेररिज्म कहा गया, या एडवर्स ऐसा एक्ट विच एडवर्सली अफेक्ट द द हार्मनी बिटवीन पीपल। ठीक है, वो सेक्टेरियन भी हो सकती है, वो कोई और वो मतलब सुबाइयत की बुनियाद पे भी हो सकती है, तो उसको भी टेररिज्म कहा गया। लेकिन still it was a very fragile type of definition. So since 1997, even courts struggled to define what is terrorism. So every case which went in the special courts and through special courts to the high courts and supreme courts, जो लीगल बैटल होती थी वो इस बात पे होती थी कि क्या ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इस एक्यूज का या इन ग्रुप ऑफ एक्यूज का, ये टेररिज्म की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। तो मुख्तलिफ कोर्ट्स ने मुख्तलिफ उसकी इंटरप्रिटेशन की इस क्लॉज की, सेक्शन 6 की। सो थ्रू आउट हिस्ट्री कुछ सेट ऑफ जजमेंट्स आपको ऐसा मिल जाएगा बिफोर द गुलाम हुसैन केस, जिसके ऊपर भी हम आएंगे। गुलाम हुसैन केस से पहले जो डेफिनेशन जजमेंट्स ने अडॉप्ट की वो दो किस्म की थी। पहली ये थी कि आप मेंस रिया को नहीं देखेंगे, वी ओनली हैव टू सी द एक्टस रियस। अगर एक्ट इस किस्म का है जिससे आवाम के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर दहशत फैली है, सेंस ऑफ फियर आया है, तो फिर हम उस एक्ट को दहशतगर्दी, टेररिज्म कहेंगे। जो दूसरा सेट ऑफ जजमेंट था, जो दूसरी साइड के जजेस थे, उन्होंने इंटरप्रेट ये किया कि नहीं, सिर्फ एक्टस रियस को नहीं देखेंगे बल्कि मेंजरिया भी देखेंगे कि क्या ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, या ये जो शख्स है, इसकी नीयत ये थी कि मैंने सोसाइटी में दहशत फैलानी है, टेरर फैलाना है, लोगों को खौफजदा करना है बड़े पैमाने के ऊपर, या इसने इंडिविजुअली जाती दुश्मनी के अंदर ये सारा काम किया। तो ये दो डिफरेंट किस्म के व्यू पॉइंट्स थे इस डेफिनेशन को लेके, और ये थ्रू आउट दिस होल पीरियड ये चलता रहा, मुख्तलिफ इसमें जजमेंट्स आई। अल्टीमेटली इन 2020 larger bench was created in the Supreme Court, और इन सारी जजमेंट्स को उन्होंने अवेलुएट किया और अल्टीमेटली उन्होंने एक जजमेंट पास की जो अभी तक, जिसको 7 मेंबर बेंच की जजमेंट है जिसको अभी तक कोर्ट्स फॉलो कर रही हैं। उसके ऊपर हम लेटर स्टेज पे आएंगे। तो फिर इसके साथ डेफिनेशन को चूंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 2001 में फिर इस डेफिनेशन को बहुत सारा उसमें तब्दीली लाई गई 2001 में थ्रू एन अमेंडमेंट। So the word terrorist act was substituted with terrorism and the definition was radically changed. The legislature by then had emphasized that a definition of a terrorist act based on the outcome of the act or its potential effect was tricky, as it led to extensive speculation of the circumstances and gave unnecessary discretion to the judges in dictating whether an act falls within the scope of Anti-Terrorism Act or not. In contrast, the design or purpose of the act was deemed to be more limited as it narrowed the scope of the definition. And thus the effect of an act was no longer the determining factor.
तो 2001 में फिर उन्होंने आकर लेजिस्लेचर ने ये कह दिया कि उसके जो अफेक्ट्स हैं सिर्फ उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि नीयत को भी देखा जाएगा, और नीयत इम्पोर्टेंट है, मेंस रिया इम्पोर्टेंट है. Therefore, both actus reus and mens rea had to be satisfied for the act to fall within the definition of terrorism. So, let's start. If you have the statute with you, uh, let's start with the definition of terrorism, which is given in section 6. So, it just reads that in this act, terrorism means the use or threat of action where the action falls within the meaning of subsection 2, and the use or threat is designed to coerce and intimidate or overawe the government or the public or a section of the public or community or sect or a foreign government or population or an international organization, or create a sense of fear or insecurity in the society. So this word, create a sense of fear or insecurity in the society, जितना भी कोर्ट्स में झगड़ा रहा है अभी तक और अभी भी चल रहा है, वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, क्या इससे सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है सोसाइटी में या नहीं हुई. फॉर एग्जांपल, किसी इलाके में, सिंध का एक केस है जिसमें 5 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया गया. मैटर जब कोर्ट में आया तो कोर्ट में ये आर्गुमेंट आया एक तरफ से, एक्यूज साइड से, कि ये पर्सनल ग्रज का मामला है, ये टेररिज्म का मामला नहीं है. दूसरी तरफ से ये कहा गया क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस इज अ लॉ इन्फोर्समेंट टूल, उनके ऊपर हमले से ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक सेंस ऑफ फियर और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हुई है. तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये टेररिज्म की डेफिनेशन में आता है, जबकि हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि पर्सनल ग्रज के अंदर ये काम हुआ है, लिहाजा ये इसमें जो मेंस रिया है, इट वाज नॉट फॉर द टेररिज्म, नॉट फॉर क्रिएटिंग सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन होल सोसाइटी, ये पर्सनल ग्रज में किया गया. तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसमें टेररिज्म का एलिमेंट नहीं है. तो इसी तरह डिफरेंट केसेस, डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिसके बाद फिर गुलाम हुसैन केस आया, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो आगे सेक्शन 6 का सब सेक्शन सी है, द यूज और थ्रेट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग अ रिलीजियस, सेक्टेरियन और एथनिक कॉज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So religious, sectarian or ethnic cause was considered to be an act of terrorism when for that purpose, for religious purpose or sectarian purpose or for ethnic purpose, something heinous is done, like hijacking the trains, or uh, having bomb blast in some mosque or some other worship area, उसको भी टेररिज्म की डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया. In the same subclause C, it states that or intimidating and terrorizing the public, social sector, media persons, business community, or attacking the civilians, including damaging property by ransacking, looting, arson, or by any other means, government officials, installations, security forces, or law enforcement agencies. So the overall definition of terrorism was widened by this amendment. So in subsection C of section 6, the public, social sector, media persons were also included. And जैसे कराची में होता है कि बिजनेस कम्युनिटी को थ्रेट किया जाता है, उनसे भत्ता लिया जाता है, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, और उनकी टारगेट किलिंग की जाती है, तो उसे भी इस डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया
कि इवन इंडिविजुअल बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस पर्सन को भी अगर आप वो उनकी टारगेट किलिंग होती है तो उसको भी टेररिज्म में शामिल कर दिया गया सेक्शन 6 सेक्शन सी में. And then the attacking the civilians, including damaging property by ransacking, looting, arson, or by any other means. So जो ransacking है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की, उसको भी डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया. बड़ा फेमस वाकया है हमारे इधर इस्लामाबाद का. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वाकया हुआ, वहां पर लॉयर्स गए तो उनके ऊपर भी 780A की एफआईआर की गई, इसी डेफिनेशन को यूज करके. रैनसैकिंग ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ terrorism. So, in subsection 2 of section 6, an action shall fall within the meaning of subsection 1 if it involves a doing of any act that causes death. अगर किसी इस तरह के एक्ट से, यानी कोई सेक्टेरियन और एथनिक रिलीजियस या किसी और वजह से कोई एक्ट किया गया है और उससे किसी की डेथ कॉज हुई है, तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में शामिल होगा. If it involves grievous violence against a person or grievous bodily injury or harm to a person. डेथ होना जरूरी नहीं है. ऐसे केसेस जिनमें ग्रीवियस इंजरी हुई है या वायलेंस हुआ है, तो उसको भी दहशतगर्दी में, टेररिज्म में शामिल किया गया है. इवन जो इस्लामाबाद का जो वाकया था हाई कोर्ट का, या इवन मुल्तान में एक वाकया हुआ था, और इसी तरह एक लाहौर में इंसिडेंट हुआ था जिसमें लॉयर्स एक हॉस्पिटल में गए थे, वहां पे भी 780 की एफआईआर हुई थी. तो इस्लामाबाद में किसी की डेथ नहीं हुई थी, कोई इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सिर्फ रैन सैकिंग के ऊपर 780A की एफआईआर हुई थी. सो यूजिंग दिस डेफिनेशन in that case which is called the नवीद हयात मलिक केस, उसके अंदर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें बड़ा डिटेल से इस सेक्शन को एनालाइज किया गया है. In sub clause 2 subsection B, it states if it involves grievous damage to property including government premises, official installations, schools, hospitals, offices, or any other public or private property, including damaging property by ransacking, looting, or arson, or by any other means. So even ransacking or even damaging the property of schools, hospitals, or government offices and other installations, that was also included in the definition of terrorism. So it goes on. It is a very long section, section 6. It, it states multiple, even bhatta is also included in terrorism. Kidnapping is also, kidnapping for ransom is also included in terrorism. And the hostage and hijacking is also included in this definition. So in subsection EE, if the act involves use of explosives by any device, including bomb blast or having any explosive substances without any lawful justification, or having been unlawfully concerned with such explosive, it is also terrorism. If it incites hatred and contempt on religious, sectarian or ethnic basis, अगर आप सेक्टेरियन आप हेट्रेड भी फैला रहे हैं थ्रू एनी मीन्स, तो उसको भी टेररिज्म के अंदर, रिलीजियस हेट्रेड फैला रहे हैं उसको भी टेररिज्म के अंदर शामिल किया गया है. एथनिक आप हेट्रेड फैला रहे हैं तो उसको भी टेररिज्म की डेफिनेशन में शामिल किया गया है. तो दिस इस पे एम्फेसाइज मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, बेसिकली इट रिवॉल्व अराउंड दिस होल डेफिनेशन. अगर आप जब भी आप इंशाल्लाह टेररिज्म के केसेस से डील करेंगे क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर, तो ये सेक्शन 6 वो है जिसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए. सेक्शन 6 में देयर आर dozens of grounds on which this section can be leveled.
तो डेफिनेशन पे जब आपकी कमांड होगी तो तब आप किसी एक्यूज को डिफेंड कर पाएंगे या उसे एटीसी कोर्ट से निकाल के नॉर्मल प्रोसीजर की कोर्ट में लेके जा सकेंगे। तो इस डेफिनेशन पे आपकी जो कमांड है वो होनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन, क्योंकि हमें 1 घंटे में बाकी चीजें भी कवर करनी है। सो की टेस्ट laid down by the courts regarding the anti-terrorism cases and applicability of this law is the mere gravity is not sufficient. ये बहुत जजमेंट्स में आपको मिलेगा कि जहां इवन 10-10 बंदों का मर्डर हो गया है, लेकिन वो अगर पर्सनल ग्रज के ऊपर, पर्सनल किसी मैटर के ऊपर है, तो उसको भी टेररिज्म की डेफिनेशन से निकाल के उसको नॉर्मल जो आपकी पाकिस्तान पीनल कोड है उसके तहत उसको सेंटेंस किया गया है। 780 ये उससे हटा दिया गया है। इसी तरह जो दूसरी चीज कोर्ट्स ने देखी है कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसको आपने कायम रखना है, उसको आपने इंश्योर करवाना है इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के जरिए। और जो नेक्सस है टेररिज्म का एथनिसिटी और रिलीजियस हेट्रेड से, उसको आपने तोड़ना है, उसको कट करना है। So there is a schedule of offences given in the schedule, also pronounced as the schedule. There is a whole schedule given in the at the end of the Anti-Terrorism Act, जिसमें बहुत से जो मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, इवन पाकिस्तान पिनल कोड की ऑफेंसेस हैं, उनको भी इस शेड्यूल में डाला गया है। अब इसमें एक चीज समझने की जरूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। एक चीज होती है किसी कोर्ट को किसी ऑफेंस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन देना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे पाकिस्तान पिनल कोड के बहुत से केसेस, जैसे किडनैपिंग फॉर रैंसम हो गया या हाईजैकिंग हो गया, उनको ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को भी दी गई है। लेकिन किसी ऑफेंस का सिर्फ एंटी इस वजह से उसको टेररिज्म नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसको एंटी टेररिज्म कोर्ट ट्राई कर रही है। ठीक है, सो ट्रायल की जुरिस्डिक्शन होना एक चीज है, और उस एक्ट का टेररिज्म होना मुख्तलिफ चीज है। सो कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनका ट्रायल इन स्पेसिफिक सिचुएशंस वो दिया गया है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को। तो जब कोर्ट्स ये देखती हैं, जैसे कराची में भत्ते के केसेस बहुत ज्यादा हैं, वहां पर ये इशू बहुत ज्यादा है, या हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा है, तो वहां पर चूंकि वो मेनेस इतना ज्यादा है, वो एक बड़ी गंभीर सिचुएशन हो चुकी है वहां पर, तो वहां पर फिर लेजिस्लेचर ने क्या किया है कि उनका स्पीडी ट्रायल करने के लिए उन केसेस को, किडनैपिंग फॉर रैंसम और इस तरह के जो केसेस हैं, इवन रेप के केसेस हैं, एसिड थ्रोइंग के केसेस हैं, वो उनका ट्रायल दे दिया है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को, ताकि वो स्पीडी ट्रायल हो। लेकिन सिर्फ इस वजह से वो जो केसेस हैं, वो एक्ट्स हैं, वो टेररिज्म नहीं बन जाते क्योंकि इसका ट्रायल कर रही है एंटी टेररिज्म कोर्ट। तो ये एक डिस्टिंक्शन आपको जरूर पता होनी चाहिए कि हर वो केस जिसका ट्रायल एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रहा है वो टेररिज्म नहीं होता। सो इवन सम मर्डर केसेस वो भी एटीसी कोर्ट में चल रहे हैं, चल सकते हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सप्लोसिव के केसेस, फायर आर्म्स के केसेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर केसेस, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चल रहे हैं। लेकिन सारे वो केसेस जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर अटैक्स के हों, वो सारे टेररिज्म की डेफिनेशन में लाजिम नहीं है कि आ रहे हों। कुछ पर्सनल ग्रजेस के केसेस भी होते हैं जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें जो कन्विक्शन होती है वो सेक्शन 6 की डेफिनेशन के तहत सेक्शन 7 में नहीं होती, बल्कि वो उन पर्टिकुलर पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंसेस में की जाती है। सेक्शन 11 जो है एंटी टेररिज्म एक्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11B के तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस,
जैसे जो रिलीजियस हेट्रेड फैला रही हों या एथनिसिटी फैला रही हों, उनको बैन करने का इख्तियार दिया गया है सेक्शन 7 के तहत एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को। तो उन्हें बैन किया जा सकता है, उनके जो मेंबर्स हैं उनको, उसको कहते हैं शेड्यूल 4 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके अंदर उनको, उन ऑर्गेनाइजेशंस को और उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनकी कैबिनेट्स होती हैं, उनके अहदेदारान होते हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। इवन थ्रू दिस वेरी लेजिस्लेशन उनके जितने एसेट्स होते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, उनको भी फ्रीज किया जा सकता है। सो दिस इज very important legislation as far as the proscribed organizations are concerned. पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 84-85 के करीब प्रोस्क्राइब्ड एजेंसीज और ग्रुप्स और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें बैन किया गया है, जिन्हें आप बैंड ऑर्गेनाइजेशन या कलादम कहा जाता है। तो वो जो कलादम की जाती हैं वो इसी लॉ के तहत की जाती हैं। जो कोर्ट्स हैं सेक्शन 13 और 14 के तहत इसमें बनाई गई हैं। तो जो एडिशनल सेशन जजेस और सेशन जजेस होते हैं उन्हें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर और मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर उन्हें एम्पावर किया गया है, जुरिस्डिक्शन दी गई है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एंटी टेररिज्म केसेस या इसके शेड्यूल के अंदर जो केसेस आते हैं उनको ट्राई करने के लिए। सो द हायरार्की इज कि जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं टेररिज्म के केसेस को देखने के लिए, वो उसमें सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस ही होते हैं, लेकिन इनका इनकी सिटिंग होती है वो बिल्कुल अलग से होती है टेररिज्म एंटी एटीसी की कोर्ट्स के अंदर। और इनकी जो अपील्स होती हैं वो फिर हाई कोर्ट में जाती हैं, और हाई कोर्ट में अमूमन डिविजनल बेंच इनकी जो अपील्स होती हैं वो सुनता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो टेररिज्म के केसेस को सुनने के लिए एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दी गई है स्पेशल कोर्ट्स को, जो इस एनेक्टमेंट के तहत बनाई गई हैं। जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं जो सीआरपीसी के तहत रन कर रही हैं, वो टेररिज्म के केसेस नहीं सुन सकती। तो स्पेशल जुरिस्डिक्शन है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के पास। इसमें एक डिस्टिंक्शन और जो मैं अभी पहले बात कर रहा था पाकिस्तान पिनल कोड के ऑफेंसेस के ट्रायल की, तो एक तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कि एटीसी कोर्ट्स को मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी, जैसे अगर रावलपिंडी है तो यहाँ पर चूंकि मुख्तलिफ तहसीलें हैं, तो हर तहसील की अलग से जुरिस्डिक्शन भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो दे सकती है। और ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट या मल्टीपल कोर्ट्स भी बनाई जा सकती हैं, जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है वहाँ। इसके अलावा कुछ टेररिज्म के केसेस ऐसे होते हैं जहाँ उसके साथ सिर्फ एक एक्ट नहीं जुड़ा होता बल्कि मल्टीपल एक्ट्स होते हैं, और वो एक्ट्स ज़ाहिर है पाकिस्तान पीनल कोड में या दीगर लेजिस्लेशंस में वो फॉल कर रहे होते हैं। तो ये जो लॉ है ये अनेबल करता है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को कि वो जहां भी टेररिज्म का केस हो उसके साथ जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है दीगर ऑफेंसेस का भी। और इसी तरह अगर कोई टेररिज्म का एक्ट है और उसके अंदर बहुत से दीगर एक्यूज पर्सन्स भी हैं, 8, 10, 12, 14 लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उस पर्टिकुलर दिन को जो एक्ट हुआ उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इससे पहले वो इन लोगों से मिलते रहे, उनकी माली मुआवनत की, उनको जगह दी, वगैरह वगैरह। तो उनका ट्रायल भी इसी कोर्ट में ज्वाइंटली होगा। यानी वो ये नहीं कह सकते कि हम चूंकि इस पर्टिकुलर एक्ट में शामिल नहीं हैं तो हमारा ट्रायल सेपरेटली नॉर्मल प्रोसीजर के तहत किया जाए। तो यही लेजिस्लेशन उनको इख्तियार देती है कोर्ट्स को कि वो ज्वाइंट ट्रायल कर सकते हैं। इस इसी लेजिस्लेशन के अंदर एक और आपने नाम सुना होगा, जेआईटी का, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम।
ये जो JIT होती है ये भी इसी लॉ के तहत बनाई जाती है, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। और ये एक मल्टी बॉडी एजेंसी होती है, मल्टी एजेंसी एक बॉडी होती है, जिसके अंदर पुलिस भी शामिल होती है, FIA शामिल होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हो सकती हैं, IB ISI वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की, या इदारे हैं, या अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी मेंबर्स लिए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी से रिलेटेड इशू है तो SECP की मदद ली जा सकती है। कोई ऐसा मामला जिसके अंदर फंड्स की ट्रांजैक्शंस का इशू है तो स्टेट बैंक से स्पेशलिस्ट लिए जा सकते हैं। इसी तरह फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स को ऑप्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि जो टेररिज्म है ये बहुत कम्प्लेक्स मैटर होता है। ये इतना सिंपल नहीं होता कि एक शख्स ने बंदूक उठाई या उसने खुद कुछ जैकेट उठाई और जाके उसने वो एक्ट कर दिया, बल्कि इसके पीछे बहुत से लोगों की प्लानिंग, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की प्लानिंग शामिल होती है। तो इसको पकड़ना और इसकी इन्वेस्टिगेशन करना एक बड़ी स्पेसिफाइड फील्ड है, और उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। और वो स्पेशलाइजेशन भी मल्टी डायमेंशनल स्पेशलाइजेशंस होती हैं। आपको फोरेंसिक्स चाहिए, आपको वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना है, आपको कंपनीज की ट्रांजैक्शंस को देखना है। तो इसलिए ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कॉन्सेप्ट इस लॉ में लाया गया, ताकि जो हमारी आर्म पुलिस है, नॉर्मल पुलिस है, या इवन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, तो उनके पास ये इख्तियार हो कि वो मल्टी डायमेंशनल एक्सपर्टीज को जमा करें और उनके ज़रिए फिर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उनको पकड़ सकें, और जो एक्चुअल जो जिम्मेदार लोग हैं किसी भी टेररिस्ट एक्ट के, उनको ला सकें, कटहरे के अंदर ला सकें। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसके अंदर लाया गया। सेक्शन 19 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि जो इसका ट्रायल है वो डे टू डे होगा, और एडजर्नमेंट्स का बड़ा लिमिटेड स्कोप इसके अंदर रखा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज़्यादा हमारी कोर्ट्स अभी भी नहीं देख रही, और जो हमारे जो एंटी टेररिज्म के केसेस हैं वो कई कई साल वो भी उनके ट्रायल चलते रहते हैं, जहाँ पे एग्जेक्टिव का इंटरेस्ट होता है, या एग्जेक्टिव जहाँ पर ज़्यादा एंथुजियास्टिक होती है, वहाँ पर तो हम तो देखते हैं कि बहुत जल्दी ट्रायल्स ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन को, जिसके लिए बेसिकली ये सारा लॉ बनाया गया कि टेररिज्म के केसेस की एक तो स्पेशल कोर्ट्स हों और स्पीडी ट्रायल हो, तो स्पीडी ट्रायल वाला जो एरिया है इस लॉ का, वो इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता हम नहीं देख पा रहे। लेकिन इस लॉ के अंदर ये दिया गया है कि ऑलमोस्ट डे टू डे ट्रायल होगा, और जो एडजर्नमेंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड उनका स्कोप रखा गया है। इसके साथ साथ इन कैमरा प्रोसीडिंग की भी इसमें इजाज़त दी गई है, और जो आर्टिकल 10A है और आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑल्दो वो ये कहता है कि आप फेयर ट्रायल यानी ओपन कोर्ट का सारा जो हक है वो हर शख्स को हासिल होगा, लेकिन इस लॉ के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोर्ट ये समझती है कि इस केस की प्रोसीडिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और सोसाइटी के लिए शायद वो इतनी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर कोई ऐसी सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जो सोसाइटी में अगर वो चीज़ें जाती हैं तो वो सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है, या स्टेट की सॉवरेनिटी के लिए बेहतर नहीं है, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की भी इसके अंदर प्रोविजन मौजूद है इसी लॉ के अंदर। इसी तरह मॉडर्न मीन्स के ज़रिए एविडेंस रिकॉर्ड करना, वो आर्टिकल 64 भी है कानून शहादत का, वो भी अप्लाई होता है, और इस लॉ के अंदर भी आपको वीडियो लिंक की और विटनेस प्रोटेक्शन की और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करके एविडेंस रिकॉर्ड करने की जो प्रोविजंस हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर जो कन्फेशन का जो मामला है, एक तो 164 CRPC में दिया गया है, इस लॉ के अंदर भी स्पेशल प्रोविजंस हैं जो डील करती हैं कन्फेशंस को बिफोर द मैजिस्ट्रेट। बेल की बड़ी एक रिस्ट्रिक्टिव किस्म की रिजीम इस लॉ के अंदर है, और जनरली जो CRPC है
उसको मैंने जैसा कि बताया कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है उसकी एप्लीकेशन को, लेकिन जहां पर ये स्पेशल लॉ साइलेंट होगा वहां पर सीआरपीसी अप्लाई होगी। बेल्स यहाँ पर चाहे प्री अरेस्ट हो या पोस्ट अरेस्ट बेल हो, दोनों तरह की बेल्स एटीसी कोर्ट में अप्लाई की जाती हैं। और अगर वहां से रिफ्यूजल हो जाए तो फिर जैसे इस्लामाबाद में है, डिविजनल बेंच में उसकी आप बेल अप्लाई कर सकते हैं, या अगर इवन डिसीजन आ जाता है तो डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में डिविजनल बेंच अमूमन सुनता है इसकी अपील्स को और बेल्स को भी। नेक्स्ट सेक्शन 21D है विच डील्स विद द बेल। और अगर ग्राउंड्स, जो सर्टेन ग्राउंड्स लॉ में दिए गए हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो बेल नहीं दी जाएगी। और इसके अंदर जो नॉर्मल लॉ है वो ये है कि एवरीवन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। इसके अंदर थोड़ा सा उलट है जो नैब में चीज आती थी, दैट द कोर्ट्स मस्ट बिलीव दैट अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी। तो इनिशियल बर्डन शिफ्ट किया गया है एक्यूज के ऊपर और उसके बाद प्रोसिक्यूशन के ऊपर। लेकिन थ्रू द जज मेड लॉज, जिन्हें हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं, प्रेसिडेंट्स के जरिए इसको ये रखा गया है कि इनिशियली प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज करेगी, और अगर प्रोसिक्यूशन प्रमा facie अपना बर्डन डिस्चार्ज कर देती है तो उसके बाद फिर एक्यूज को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना केस प्रूव करे, अपनी इनोसेंस को प्रूव करे। तो बर्डन इज ऑन द एक्यूज्ड एज पर लॉ। रिमांड और इसको मैं स्किप करता हूं चूंकि टाइम कम है। पनिशमेंट्स इस लॉ के अंदर बहुत सीवियर हैं। डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, क्योंकि क्राइम जिनको ये लॉ डील करता है वो बहुत हीनियस हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, and then imprisonment up to 14 years along with fines। ये लॉ इसमें एनेक्टमेंट की गई है। सेक्शन 11 के तहत जो प्रॉपर्टी है एक्यूज की और टेररिस्ट की, वो कन्फिस्केट की जा सकती है सेक्शन 11 के तहत। और जो प्रॉपर्टी टेररिज्म में यूज हुई है या आफ्टर ट्रायल अगर कोर्ट ये समझती है कि ये शख्स गिल्टी है और इसकी प्रॉपर्टीज या इसके एसेट्स इन्वॉल्व हैं टेररिज्म की एक्टिविटीज के अंदर, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी कन्फिस्केट किया जा सकता है। अपील सेक्शन 25 के तहत होती है इसकी। इसमें जितने भी केसेस हैं इस एक्ट के अंडर जो भी ट्रायल होंगे उनकी अपील सेक्शन 25 के तहत जाती है। 7 डेज का टाइम है फॉर अपील्स, और उसमें भी ये कहा गया है कि हाई कोर्ट्स भी उसका स्पीडी डिस्पोजल करेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हाई कोर्ट्स में इवन टेररिज्म के केसेस वो बहुत सालों तक पड़े रहते हैं और उनका जो फाइनल जो फैसला है वो नहीं आता। ट्रांसफर की इसमें पावर दी गई है हाई कोर्ट्स को कि वो एक एटीसी कोर्ट से केस लेकर दूसरी कोर्ट को दे सकते हैं फॉर फेयर ट्रायल, और या सिक्योरिटी रीजंस के जरिए। इवन जेल ट्रायल की भी आपको पता है कि वो इसके अंदर प्रोविजन मौजूद है, तो जेल ट्रायल भी किया जा सकता है। So the overall structure which we studied is that this is a special enactment. Special courts have been created for dealing with the terrorism cases, and it was basically enacted for the speedy trial. But unfortunately, we don't see the speedy trials, and the stricter bail regime is given in this law. वो fortunately अभी तक है कि जो टेररिज्म रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनके अंदर जो बेल है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं दो केसेस आपको जरूर रेफर करूंगा, प्लीज उसको नोट डाउन कर लें। वन इज पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट 17। पीएलडी 2016
Supreme Court 17. This is the famous case of Malik Mumtaz Hussain Qadri. Uh, इसके अंदर ये जो डेफिनेशन है जो सेक्शन 6 में दी गई है इसको बड़ा कंप्रीहेंसिवली एंड विद द हिस्ट्री ऑफ दिस होल डेफिनेशन और इसके गिर्द जितने भी केसेस घूमते रहे उनको डिस्कस किया गया है। काफ़ी लेंथी जजमेंट है, अबाउट 30-35 पेजेस। इसको आप ज़रूर पढ़ें। आपका जो कॉन्सेप्ट है एक्टस रियस और मेंस रिया से मुतालिक वो भी यहाँ पे आके आप उसको देखेंगे, जो भी हमने इनिशियली जिसको डिटेल में हमने देखा कि एक्टस रियस को ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस देनी है या मेंस रिया को देनी है या दोनों को जॉइंटली देनी है, तो इसके अंदर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन है। फाइनली ये डिस्कशन जो जहाँ पे जाके ख़त्म हुई है दैट इज़ गुलाम हुसैन केस विच इज़ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 61। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 61। ये जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब की जजमेंट है जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे, और ये 7 मेंबर बेंच की जजमेंट है। तो इसके अंदर मैं कुछ इसका एक एक्सट्रैक्ट पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए जाएं। Sure, sir. So now, everyone, if anyone has a question, they can raise their hand one by one, and then sir will be taking the questions. सर ये आपने जो बताया ना कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स होते हैं ना उनमें और कौन-कौन से केसेस हो सकते हैं मतलब टेररिज्म के अलावा आपने बताया ना कि ये कि टेररिज्म के जो कोर्ट्स है ना उसमें सिर्फ टेररिज्म वाले केसेस नहीं होंगे, बाकी भी होंगे, तो बाकी कौन से केस हो सकते हैं उसमें? जी बिल्कुल, मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। इट इज़ द शेड्यूल ऑफ दिस दिस एक्ट, जिसके अंदर एबडक्शन और किडनैपिंग फॉर रैंसम, यूज ऑफ फायरआर्म्स फॉर टेररिज्म, firing or use of explosive by any device. It is schedule third schedule of this act, जिसके अंदर डिटेल से बाकी जितने भी एक्ट्स हैं वो दिए गए हैं जो इसके अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट, उनको भी इख्तियार दिया गया है कि वो इसके अंदर एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो शेड्यूल आपने ज़रूर पढ़ लेना है, वो डिटेल्ड है। और इसके अलावा जजमेंट्स में फिर उनको उसको बहुत सारे एक्ट्स को उसको शामिल भी किया गया है, और इस शेड्यूल को भी फिर एक्सपेंड किया गया है, क्योंकि बहुत से एक्ट्स ऐसे होते हैं जो लिंक करते हैं फिर टेररिज्म के साथ। तो आपने इसका जो शेड्यूल है उसको आपने जरूर देख लेना है, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। एनी अगर अदर किसी और क्वेश्चन? का सवाल है तो वो भी पूछ लें। जी, पूछ लें आप। सर, सो दैट्स इट। अभी मुझे नहीं लगता अस्सलाम किसी सर। का। यस प्लीज। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, अभी आ रही है सर। जी आप पूछें। सर एक सवाल था मेरा कि एक बंदे के पास पिस्टल है, वो अ, उसकी लाइसेंस के मतलब बनी हुई है उसकी। वो लाइसेंस वो जो है घर पे मतलब भूल जाता है, वो ऐसे ही पिस्टल लेकर चला जाता है। ठीक है, तो रास्ते में नाके में जो है वो पुलिस उसको पकड़ लेती है और वो उनसे पूछती है कि इसका लाइसेंस कहाँ है। और वो मतलब मौके पर ही ना उसको वो चार्ज कर देती है, मतलब कि आपने ये क्यों लिया हुआ है,
ये पिस्टल वगैरह ऐसे क्यों लेकर आए? और वो बंदा अगला कह भी रहा है कि ये मैं मतलब कोई दुश्मनी है या इस तरह से कोई भी है, उसको रीजन दे रहा है। फिर भी ना उसको उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं, तो क्या वो दहशतगर्दी में आ जाएगा? नहीं नहीं, वो दहशतगर्दी में नहीं आएगा। ये नॉर्मल जो आपका लॉ है, विच इज आर्म्स ऑर्डिनेंस, उसके तहत ये फॉल करेगा। सेक्शन 13 है आर्म्स ऑर्डिनेंस का, उसके तहत ये फॉल करता है। कॉमनली आपने सुना होगा फलां पे 13, 20, 65 का केस हो गया, तो वो दैट इज द FIR अंडर सेक्शन 13 ऑफ आर्म्स ऑर्डिनेंस, उसके तहत ये फॉल करेगा। हाँ, अगर अमाउंट ऑफ वेपन्स बहुत ज्यादा है, मतलब गाड़ी पूरी भरी हुई है, या उसके अंदर कोई डेटोनेटर्स हैं, कोई हैंड ग्रेनेड है, या वो वेपन्स की जो टाइप है वो प्रोहिबिटरी उसमें वेपन्स में फॉल करती है, उसकी जो बोर है वो प्रोहिबिटरी है, तो फिर डेफिनेटली सरकमस्टांसिस को देख के पुलिस के पास इख्तियार है कि वो 780A की FIR दे सकती है। जो सिनेरियो आपने बताया ये बहुत कॉमन है। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप देखेंगे कि लाइसेंस पिस्टल किसी की गाड़ी से निकला और उस पर FIR हो गई, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, तो अगर वहां पर आप लाइसेंस उसका प्रोड्यूस कर देंगे कोर्ट के अंदर, तो वो आपका एक्यूज भी डिस्चार्ज हो जाएगा और वो FIR भी अल्टीमेटली क्वाश हो सकती है। सर वो पुलिस ना उसको अपने ही मतलब तरीके से उसको 13D लगा देती है कि ये पिस्टल जो है वो अपना लेकर आती है पुलिस वाला, तो कि ये जी इसके पास नहीं, ये पिस्टल नहीं था और ये था पिस्टल जिसके बिना पर हमने इसके ऊपर चार्ज लगाई हुई है। तो वो ये रियल स्टोरी भी है सर, मेरे सामने गुजरी है। वो बंदा एक ना वो जेल भी चला गया, जी, तो बिल्कुल ऐसा हालांकि भी उसके होता है। पास थी भी सही। जी, बिल्कुल ऐसा भी होता है। अब ये चूंकि हम लॉ के साथ, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी और हम भी चूंकि इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हम मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। पर्सनल ग्रजेस की वजह से भी हो सकता है कि नाके पे उसने रिश्वत मांगी, आपने नहीं दी और उसने पिस्टल डाल दिया, ये भी हो सकता है। तो ये तो वो फिर मैटर्स हैं जिनको एज अ लॉयर फिर आपने चीज़ों को टैकल करना है। मेरे साथ खुद एट द वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय प्रैक्टिस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन का केस आया, और उससे लाइसेंस पिस्टल निकला मेरे एक्यूज से। अल्टीमेटली हमने कोर्ट के अंदर फिर उसका लाइसेंस प्रोड्यूस किया और हमने कहा कि ये वो पिस्टल ही नहीं था, बेसिकली दूसरा पिस्टल था जो इससे रिकवर हुआ था, और इन्होंने इसके ऊपर केस डाल दिया, ये उसका लाइसेंस है। एंड अल्टीमेटली दैट एक्यूज गॉट एक्विटेड इन दैट केस आफ्टर फुल फ्लेज ट्रायल। लेकिन ये फिर अनफॉर्चुनेट है कि जब इस तरह का केस होता है तो इनिशियल स्टेजेस पे आप उसको खत्म नहीं कर पाते। बेल तो हो जाती है 13D में। अब पंजाब ने उसको बड़ा वो बढ़ा दिया है, उसको नॉन बेलेबल करके उसमें 10 साल की सजा कर दी है। पहले ये कम थी, 3 साल थी, फिर 7 साल हुई, काफी अरसा यही रही, नॉन बेलेबल रहा, बेलेबल रहा, फिर उसको नॉन बेलेबल कर दिया गया, और अब तो अल्टीमेटली उसमें 10 साल की सजा कर दी गई है, जो सिंपल पिस्टल सर की फिर रिकवरी है। फिर वो पुलिस के ऊपर वो चार्ज हो सकती है ऊपर से, अगर उसके जो एक्यूट हो जाए वो मुलजिम? जी, हो सकती है। जैसे आज की अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो या कल की फॉलो की हो, तो इस्लामाबाद में एग्जैक्टली एक केस हुआ है जिसमें एक SHO साहब हैं, शबीर तनोली साहब, उनका केस बड़ा फेमस न्यूज़ में हर जगह आता रहा है। उन्होंने एक शख्स के ऊपर इसी तरह एक पिस्टल डाल दिया, और वो अल्टीमेटली उसकी बहुत सारी इंक्वायरीज हुई, हाई कोर्ट में भी वो क्वाशमेंट के लिए गया, और अब इंक्वायरी में ये चीज़ साबित हो गई है कि उस पुलिस वाले ने गलत उसके ऊपर पिस्टल डाला था, और वो ऑफेंडर नहीं था इस तरह का। तो अल्टीमेटली अब उसको उन्होंने फिलहाल सस्पेंड किया है, और वो शायद वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी हो जाए। तो अगर आप ये साबित कर देते हैं कि पुलिस की कोई मेलाफाइडी थी इसके अंदर, तो डेफिनेटली आप डिपार्टमेंट के ऊपर भी और उन पर्टिकुलर जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आपको नाके के ऊपर रोका, उनके ऊपर भी आप हेफ्टी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्ट लॉ को भी जरूर, जब आप प्रैक्टिस में आए तो जरूर उसको प्रैक्टिस करें इस तरह के केसेस में, और अपने क्लाइंट्स को भी प्रोटेक्ट करें, जरूर उनके ऊपर डैमेजेस फाइल करें। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर ये जो गन होता है या पिस्टल होता है ना, तो एक तो अब मेरे पास है और मेरे पास उसका लाइसेंस है, तो बस ये एक ही प्रूफ है, बाकी पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका। सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर अभी ना मेरे पास एक पिस्टल है, लाइसेंस भी मेरे पास ही है, तो वो लाइसेंस
एक ही मतलब प्रूफ है कि वो मेरा है, वो गन मेरा है, या इस तरह, या पीछे भी कोई रिकॉर्ड होता है? जी देखिए, आपके लाइसेंस का तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन पिस्टल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जब आप पिस्टल लेते हैं लाइसेंस, और उसके ऊपर फिर जो आपके लाइसेंस का नंबर है वो आप पिस्टल के ऊपर इनग्रेव करवाते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस का तो रिकॉर्ड है। अगर लाइसेंस भी, फॉर एग्जांपल, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस लाइसेंस लेके वो फाड़ देती है, क्योंकि उसने आपको करना है, आपके ऊपर केस बनाना है। तो लाइसेंस तो बचा ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। और जो पिस्टल है वो पुलिस गायब करके दूसरा पिस्टल लेके आ जाती है जिसके ऊपर इंग्रेव्ड नहीं है आपका लाइसेंस नंबर। तो ये तो वो केसेस हैं जिनको आपने अपनी वकालत में, ज़ाहिर है, अपनी स्किल्स के जरिए टैकल करना है। जो लाइसेंस का रिकॉर्ड है वो तो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, या जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ से वो जारी हुआ है, या मिनिस्ट्री के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो तो आप कॉपी ले सकते हैं। लेकिन जो पिस्टल है वो पुलिस चेंज कर देती है। एक्चुअल इशू ये होता है, जो क्वेश्चन था दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट का, तो वहां पे फिर जाहिर है आपको डिफिकल्टी होती है और आपको फुल फ्लेज ट्रायल में से गुजरना पड़ता है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू आंसर। सॉरी, ये टॉपिक इतना बड़ा था, ये एंटी टेररिज्म एक्ट का, ये उसमें सेशन है, ये मुकम्मल नहीं हो पाया, हमारे बाकी दोनों चीज़ें रह गए। तो नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल करने की। जी सर, बिल्कुल, वो कोई मसला नहीं है, वो बेशक अपने नेक्स्ट सेशन में बस उसका 10 टू 20 मिनट्स का ओवरव्यू दे दीजिएगा। बाकी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से, आई गेस, डिटेल में जाने के लिए, आपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, और मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन है। अगर कंटिन्यू करना था या कोई जजमेंट रीड करनी थी तो वो बता दें, और अदरवाइज़ अगर आपने अपना कंक्लूड कर दिया है अपनी साइड से, बस ये कन्फर्मेशन दे दें। मैंने 2 जजमेंट्स आपको पीडीएफ भेज दी हैं। अगर आपको कोई ग्रुप बना हुआ है तो ये दोनों जजमेंट्स, पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट मुमताज कादरी केस, एंड सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुलाम हुसैन केस, पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट, ये ज़रूर आप इनसे शेयर करें। इसको आप पढ़ेंगी तो ये आपके जितना भी कॉन्सेप्ट है टेररिज्म से रिलेटेड, स्पेशली इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड, वो आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सर, वो रिसीव हो गई है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपके वक़्त के लिए, आपने दिया अपना वक़्त और इतने अच्छे से डिटेल में सारे पार्टिसिपेंट्स को समझाया। तो हम इंतज़ार करेंगे आपका, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे भी आपको देखेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। मैं कुछ स्लाइड्स भी इसकी एटीए एक्ट की वो भी आपको भेज दूंगा लेटर ऑन। जी थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।